Today we will take certain queries that has been asked by the students. So the first query, it is related to the chromatography. So chromatography. So in this chromatography, if it is a 10 mark question, what you supposed to write? That is one of the query that is asked by the student. So in the chromatography, it is of 10 mark question. Then first you have to write the introduction of that chromatography. That is, you have to open up that word, that is the chroma and the graphy. So it is derived from the Greek word. So first thing that you have to write, that is that we called it as a definition, or it can be a introduction of it. Okay, that will be the first point in the chromatography. Then in the second thing, you have to write down the basic principle of the chromatography. The basic principle is same for all the paper chromatography, or it may be the bar chromatography, and hence you have to write down this basic principle behind this technique. So here we are using the adsorption medium, not absorption. So hence you have to write down the principle key in this medium adsorption of various components of a mixture between the two different phases. So two different phases means mobile phase and the stationary phase. So stationary phase, which is referred, which supports the system, which are fixed, which are not mobile. And the mobile phase means it is a medium through which the mixture to be separated, or it moves in a particular direction. If you are drawing the bar there, then it will be move according to your bar. So the in this way you have to write down the mixture gets separated by distributing the components of its molecules, and distribution takes place depending upon the structure, size, shape of the that contain. So all these things you have to write down. After that, you have to write down the uses. If it is a general chromatography, if the question is of chromatography, then these points are included. So you have to write down the uses of the different types of chromatography. For example, it is a thin layer chromatography. So this thin layer chromatography, it is a inexpensive process, and it is a simple and also the quick process, which will helpful for to differentiate that mixture into the different component. And then we have to calculate the RF index. The retention factor we have to calculate. The second is the HPTLC. So HPTLC, why we are using? Because it is an advanced technique. So that mixture will be जो spread हो रहे हैं, that result will be more analytical. It is more accurate. It is the faster, and the several analysis can be done at a time, and that's why we are doing the HPTLC. Then you can write down the types of chromatography here. So in that type, depending upon the phases that you are using, you can write down. Suppose if you are using the liquid chromatography, or if you are using the gas chromatography, and you can use the supercritical fluid. So if it is a liquid chromatography, then in the liquid chromatography, depending upon the liquid use, it is divided. Similarly, in the gas and in the supercritical fluid, here they are using the gases, but we are not having any explanation about this. So you have to write down only the three types: liquid chromatography, gas chromatography, and in the liquid chromatography, there is an adsorption chromatography and partition chromatography, ion exchange chromatography. And in the gas solid chromatography and the gas liquid chromatography. Then again, they have given the classification of the chromatography. So that thing is included in the types only. After that, you have to write down the advantages of the
that if they have asked, so this much quantity is sufficient for the chromatography, plus you have to write down the one technique. If again I am telling, if that question is only related to the chromatography, then here you can write down one example of this chromatography. So here you can write down the thin layer chromatography, or you can write down the uh, HPTLC, or you can write down the liquid chromatography. The any one example you can write down here. So if it is a thin layer chromatography, so that is a liquid chromatography. So in the liquid chromatography, if you are giving the example of thin layer chromatography, again write down the operational technique or how the procedure are there in the thin layer chromatography, and then write down about the RX, sorry, retention value index, वो index देना है. So RF is equal to what you have to write down, the distance traveled by the solute divided by distance traveled by the solvent. So in this way you have to write down and give the advantages कि this is the low in cost, short analysis होता है इसमें, then small quantities of solvent use होता है, reliable है, then the adaptable in most of the pharmaceutical. So you can write down the one example, or you can write down the example. With that you can write down the example of any mother tincture. So cactus grandiflorus का अगर आप example लेते हैं तो what absorption and adsorption media you use, then how you check. So in this way you can write down the example, or you can write down the HPTLC. So this much is sufficient for the 10-mark question of the chromatography. The definition and introduction, basic principle, then the uses, types, and here in the types you can write down or classification also, that is given in your book. So you can write down the classification of it with the types, and then you can write down the one example. It may related to the thin layer chromatography का एक example दे सकते हो आप, and in that thin layer chromatography again you can give the example of mother tincture, and or you can give the example of HPTLC or paper chromatography. बट जो भी आप एग्जाम्पल दोगे उसमें फिर से आपको और एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा रिलेटेड टू दैट मदर टिंचर और एनी मिक्सचर का. यू कैन गिव द एग्जाम्पल एंड यू कैन ड्रॉ द डायग्राम. सो दिस इज अबाउट द क्रोमेटोग्राफी. अब इसके आगे जाके अगर आपको सिर्फ HPTLC पूछते हैं तो again the same procedure you have to follow. You have to write down again the chromatography, then write down the introduction and the definition of chromatography plus introduction and the definition of that particular chromatography. HPTLC पूछा है तो या फिर thin layer chromatography पूछा है तो उसका एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा. And second thing is that कि why we are doing that, here we have to write down basic principle की जगह पे we will write down कि why we are using the HPTLC. कि because so you can write down here the advantages of or the features of the HPTLC we can write down. Then write down the technique. So instead of uses, you will write down the technique of the HPTLC, what components you are using, the what is the procedure, draw the diagram there, and then uses. So in this way you can write down the HPTLC. Similarly, you can write down the paper chromatography also. Principle, its procedure, diagram, and the uses. So in this way you can write down the any type of chromatography in this fashion. Clear? So start with the definition and introduction, and then write down the basic principle, procedure for the different type of chromatography, uses you have to write down, and draw the diagram. So that will be a helpful for you to write down and better understanding also. Draw the diagram so that it will be better for you कि आपने जो लिखा है वो करेक्ट है, वो एग्जामिनर को भी समझेगा. सिंपल पेपर क्रोमेटोग्राफी का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो आपको क्या ड्रॉ करना है, एक जार ही ड्रॉ करना है, उसमें मिक्सचर, पेपर और उसका पहले का जो स्पॉट और कहाँ तक वो स्पॉट जाता है वो डिस्टेंस मेजर करना है एंड गिव टू द रिटेंशन इंडेक्स का फॉर्मूला देना है. सो इन दिस वे उसको भी समझेगा एग्जामिनर को कि यस यू नो इट वेरी वेल. इन द HPTLC ऑल्सो आपको वही करना है, एक सॉल्वेंट निकालना है,
देन एक पंप निकालना है आपको, कॉलम में से जाएगा, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, एक ईसीजी से जैसा ग्राफ, एंड देन वेस्ट विल कम आउट. सो इन दिस वे इफ यू आर ड्राइंग द डायग्राम, इफ यू आर राइटिंग द बेसिक, जो भी आपको कुछ आता है तो वो उसमें वो डायग्राम में लिखना, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड कि यस आपको वो टॉपिक समझा है. So this is about the chromatography. I think I am very much clear. These points you have to write down. That's why I have not written it previously, writing in front of you, ताकि वो आपको भी समझ सके. So again, if you have any doubt, you can ask. Now the second question, which is related to the preparation of the, or you can write down the ethyl alcohol. Ethyl alcohol. So this is very a vague query, I think so. कि ethyl alcohol में क्या चाहिए? So if it is ethyl alcohol से इसका preparation आता है, या फिर इसके uses आते हैं, या फिर इसके specific gravity आती है, different types of alcohol की, जैसे मैंने पूछा था, the different types of alcohol with their specific gravity. So anyway, we can take the ethyl alcohol. So अगर ethyl alcohol का क्वेश्चन आता है which is related to the, generally ये 5 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, not more than that. 10 मार्क के लिए तो अभी तक ये आया नहीं है. So if it is related to ethyl alcohol of 5 marks, then again in the introduction you have to write down the its chemical formula, then molecular weight and synonym if you know, then sources. So second part, that is the important कि कौन से sources है कि जिससे आप ये ethyl alcohol बनाने वाले हो. So you have to write down the sources there. Again, if they are directly asked you कि made it from the molasses, then it is very easy. दूसरा पार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको. सो मोलासेस से आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे. सो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है कि व्हाट इज मोलासेस, सो दैट मदर लीकर जो बच जाता है, आप जब गन्ने का जूस निकालते हो, द मोलासेस इज द मदर लीकर विच इज लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द केन शुगर फ्रॉम द केन जूस. तो वो मोलासेस का आपको लिखना है. देन मोलासेस में आपको जो पहले भी मैंने ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सबने अच्छे से लिखा है जिसने भी लिखा है. So in that first you have to do the preparation of wash, and the second is the distillation of the wash. In this way you have to write down. अब इसमें important चीज क्या है, that is the जो enzymes आप use करते हो, so that enzymes should be included कि हम इसमें invertase और zymase डालते हैं. So these enzymes are present in the yeast. So that is only the क्या बोलते हैं उसको, important thing in that आंसर कि सुक्रोज लिया है, सुक्रोज में हमने इन्वर्टेज डाला है, सो दैट सुक्रोज वी डिवाइडेड इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और फिर जो ग्लूकोज है उसमें जो झाइमेज एंजाइम है दैट विल बी ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम वहाँ पे फर्मेंटेशन कर रहे हैं. और बाय द नॉलेज ऑफ 12th हमको पता है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन इज द अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. ये दो जो चीजें हैं ये आना जरूरी है. प्लस विद दैट यू हैव टू राइट डाउन द टेम्परेचर, बिकॉज जब आप ईस्ट डालते हो तो टेम्परेचर वहाँ पे जो ऑप्टिमम है वो रहना जरूरी है, अदरवाइज वो ईस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ईस्ट में जो बैक्टीरिया या जो एंजाइम है that will act properly. And after that you have to write down the coffee's stage, that is in the distillation of the wash. So this is about the molasses. अब दूसरा अगर आपको पूछते हैं that is from the starchy material. So in that starchy material you can take one of the material. तो यहाँ पे होता है starchification, then you will get the maltose. Again there is the same procedure, that is the fermentation. So that is the starchification पहले होगा, then the alcohol ferment. ये दो ही प्रोसेसेस उसमें आते हैं. अभी
ये आइदर मोलासिस, इफ इट इज अ 10 मार्क क्वेश्चन और आपको सिर्फ इथिल अल्कोहल उन्होंने इतना वेग हेडिंग डाला है, सो यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट टू मोलासिस, नॉट द स्टार्ची सब्सटेंस, बिकॉज इन अवर इंडिया वी आर प्रिपेयरिंग द अल्कोहल फ्रॉम द मोलासिस, यानी 90% हम लोग मोलासिस से ही बनाते हैं. So you first write down about the molasses and then write down, if you are having the time, then you write down about the starch material. लेकिन अभी इसमें भी मैं आपको बोलती हूँ कि if you want to save the time, तो आप इसमें सिर्फ प्रिंसिपल लिखो कि यहाँ पे सैक्रिफिकेशन पहले करना पड़ता है, स्टार्च सब्सटेंस, वो जो रिएक्शन दी है अपने बुक में, राइट डाउन दैट कि माल्टोज बनेगा एंड माल्टोज से देन यू आर प्रिपेयरिंग द इथिल अल्कोहल, तो वो तीनों रिएक्शन लिख लो. स्टार्च लिया है, उसमें वाटर डाला है, देन डायटेस एंजाइम विल एक्ट एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज, माल्टोज विल कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज विल कन्वर्टेड, वो तीनों रिएक्शन आप पहले लिख लो. देन इफ यू आर हैविंग द टाइम, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखो. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लिव इट, क्योंकि आपको इसके आगे इसके एडवांटेजेस और प्रॉपर्टीज और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं कि दे आर मोर इम्पोर्टेंट. ओके, सो और प्रिकॉशंस लिखने हैं, या फिर आप उसमें यूजेस भी लिख सकते हो. सो ये 3-4 पॉइंट आपको लिखना जरूरी है इफ दे आर वेगली आस्क्ड फॉर द इथिल अल्कोहल. अब इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें आएगी, इसके जो पर्टिकुलर यूजेस है वो इसमें आएंगे, इसके प्रिकॉशंस आएंगे, देन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो ये 3-4 पॉइंट इसमें जरूरी है. इसलिए आप कट कहाँ पे कर सकते हो थोड़ा सा, तो स्टार्ची मटेरियल में यू कैन रिड्यूस योर मटेरियल एंड यू कैन सेव योर टाइम. अब ये सब लिख के भी इफ यू आर हैविंग द टाइम, देन यू कैन राइट डाउन अबाउट दिस स्टार्ची मटेरियल. क्लियर? सो अब इसमें दूसरा पॉइंट आपका कौन सा आएगा, दैट इज प्रॉपर्टीज. सो आपके इसमें जो प्रॉपर्टीज दिए हैं दे आर रिलेटेड टू द अल्कोहल, लेकिन आपको किसका पूछा है, इथिल अल्कोहल का. So you write down the properties of the ethyl alcohol. तो सेम ही है, लेकिन instead of only writing the alcohol, you write down the ethyl alcohol. उसके बाद आप इसके advantages and disadvantages आप इसके दे सकते हो. Then you can write down the uses of the ethyl alcohol, okay, and precautions, because this is a alcohol, so you have to handle it properly. So this is the format that you have to write down in the ethyl alcohol if it is asked for the 10 marks. If it is only a 5 marks vague heading है तो आप इतना ही लिखना है आपको, मोलासेस, इसके एंजाइम्स, बात खत्म. आप सिर्फ स्टार्ची मटेरियल के रिएक्शन लिख दो, हो गया. इसमें इतनी, अगर आपके पास फिर भी टाइम है तो यू कैन राइट डाउन द यूजेस एंड प्रिकॉशंस, मोर देन सफिशिएंट फॉर द 5 marks. If it is a 10 marks, then you have to write down all these points. Again I am repeating, if it is a 5 mark, write down the introduction about the ethyl alcohol, then sources, preparation it from the molasses, इसमें enzyme की reaction लिखना जरूरी है. Starchy material में भी आप reaction लिखो, and if you are having the time, write down the uses and precautions while handling the alcohol. This much is sufficient for the 5 marks. If it is of 10 marks, then you have to write down the properties, advantages, disadvantages, uses and precautions. And if you are having the time, then you can write the explanation of the starchy material. So this is about the explanation for the alcohol. अब इसमें अगर एक सेकंड ना, अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं लिखोगे, सो दैट विल बी अ बैड इंप्रेशन. सो इफ पॉसिबल राइट डाउन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ethyl alcohol. Or second thing is that there is a schematic representation is also given in your book for that starchy material. अगर आप वो भी instead of writing all the explanation, अगर आप उसमें वो फ्लो चार्ट भी अगर ड्रॉ कर देते हो तो इट इज वेरी नाइस. आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हो या फिर आप उसमें ब्लॉक कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे फॉर्म हुआ, तो आपको लिखने की भी वो जरूरत नहीं है. Then the third question that is asked that about the semi-solid vehicle. So in that semi-solid vehicle, again that semi-solid vehicle,
अभी तक तो उसका जो क्वेश्चन है it is asked for the 5 marks only. So under this semi-solid vehicle, you have to write down the what is semi-solid vehicle first. So definition आप उसमें लिख सकते हो, types इसमें आप classification इसमें आप लिख सकते हो. The classification of this semi-solid vehicle. Classification में यानी इसमें Vaseline आएगा. There are 2 types of Vaseline. That is the white Vaseline and the yellow soft Vaseline. तो ये आप classify कर सकते हो. Second is the wax. इसमें B wax आप लिख सकते हो. That B wax is again of 2 types, yellow and the second one is the white. Then the list will increases. It will also include the linolene, then the spermaceti, soap, isinglass. Then the soap में भी फिर आपका कर्ड सोप और सॉफ्ट सोप आएगा and the starch. So you write down the list with the classification. Then write down about our favorite and most क्या बोलते हैं उसको cheap जो है, that is the Vaseline. So write down all the things about the Vaseline. अब इसमें आपका आएगा definition, varieties तो आपने पहले ही दी है. Then source, property and uses. These are the 2 main important in the Vaseline. सो येलो में भी वही आएगा एंड वाइट में भी वही आएगा. अगर इफ पॉसिबल आपको होता है सो राइट डाउन ओनली द डिफरेंस बिटवीन द येलो एंड वाइट. सो एक कॉलम बना के ये साइड में वाइट लिखो, ये साइड में येलो लिखो एंड देन राइट डाउन द यूजेस ऑफ इट. तो ऐसा आप टाइम पे कम कर सकते हैं. सेकेंड जो आप लिख सकते हो दैट इज द वैक्स. So in the waxes you can write down वही बी वैक्स आप इसमें लिखना है आपको. बी वैक्स के 2 टाइप इसमें आप लिख सकते हो, येलो एंड सेकेंड वन इज द वाइट. अब येलो में उन्होंने प्रोसीजर दी है लिखना कैसा है, तो सेम ड्रॉ द फ्लो चार्ट. हनीकॉम को फिर रिमूव करके जो बचेगा उसको हम मेल्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर, उसको कूल करना है. देन इट इज गेट सेपरेटेड. देन अगेन राइट डाउन द यूजेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन दिस वे अब इसके बाद लिनोनिन वगैरह लिखने से जो अच्छा है, अगर ब्रॉड आता है सेमी सॉलिड व्हीकल, सो इंस्टेड ऑफ आई विल सजेस्ट इट कि आप स्पर्मेसिटी वहां पे लिखो, क्योंकि इसके जो यूजेस है स्पर्मेसिटी के दे आर मोर, बहुत ज्यादा यूजेस है उसके. तो यू राइट डाउन द स्पर्मेसिटी and then you can write down about the starch and the soap. So by giving these much example, it is very sufficient of starch and you can write down about the soap. So these are the 5 examples are sufficient in the semi-solid vehicle. So spermaceti में आप उसके constituents लिख सकते हो, how it is prepared, कहाँ से आप उसका source क्या है spermaceti का, तो वो अच्छे से mention कर सकते हो. And then the properties and uses. Similarly, you just drop that lard, isinglass. अगर आपको सिर्फ मेंशन करना है तो isinglass लिख सकते हो, but I will suggest that you write down the soap. So soap में हम 2 टाइप्स लिख सकते हो, कर्ड सोप एंड सॉफ्ट सोप. सो जैसे हमने वैसलीन में 2 पार्ट किए थे फॉर द व्हाइट वैसलीन एंड येलो वैसलीन, सिमिलरली यू कैन फॉलो फॉर द सोप ऑल्सो, सॉफ्ट सोप एंड द कर्ड सोप. सो सॉफ्ट सोप को सिनोनिम क्या है, सैपोमोलिस, और इसको क्या है, सैपो एनिमलिस. देन सोर्सेस क्या है, तो सॉफ्ट सोप इज विद द KOH NaOH with the suitable vegetable oil, and in the curd soap we are using the NaOH with the purified solid animal fat. इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज आर द सेम. सो एंड द यूजेस जो है, जो यूज है इसका कर्ड सोप का, इट इज यूजफुल फॉर द ओपोडेल डॉग्स. सो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द बाय डिमार्केशन से आप लिख सकते हो. एंड द लास्ट वन इन द स्टार्च. सो स्टार्च का यहाँ पे सिर्फ सोर्सेस लिख लो कि मेज से बना सकते हैं, पोटैटो से बना सकते हैं, and then properties and uses. So this much is sufficient for the semi-solid vehicle, which is generally asked for only the 5 marks. So Vaseline, spermaceti, wax. अगर आपको isinglass अगर आपको अच्छे से आता है तो you can write down isinglass, इसलिए क्योंकि उसमें मटेरियल कम है and it is derived from the एयर ब्लैडर फ्रॉम द फिश. इतना भी अगर आपने लिख लिया तो भी होगा. उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बहुत कम है एंड ए सिंगल यूज कि इसको प्लास्टर में यूज होता है. सो दैट इज अगेन अ सफिशिएंट
सो 5 एग्जाम्पल्स आपको लेने हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से 5 एग्जाम्पल्स आपको इसमें लेने हैं। आप आइसिंग ग्लास लोगे तो आपका सोप का बहुत सारा जो मटेरियल है दैट विल बी रिड्यूस। सो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन से 5 एग्जाम्पल्स लेते हो। लेकिन प्लीज राइट डाउन, प्लीज टेक द वैसलीन देयर बिकॉज इट इज ब्रॉड यूजेस है इसके एंड वी आर यूजिंग द वैसलीन इन द ऑइंटमेंट्स एंड हम ज्यादा यूज करते हैं कोई भी जो स्किन क्या बोलते हैं उसको ऑइंटमेंट्स है या एक्सटर्नली जो लगाते हैं, जनरली वी आर यूजिंग द वैसलीन बिकॉज इजीली अवेलेबल है ये और चीप सोर्स है। सो दिस इज द सेमी सॉलिड व्हीकल विच कंसिडर फॉर 5 मार्क्स। द थर्ड क्वेश्चन एक आया है दैट इज अबाउट द पोटेंटाइजेशन। सो दिस पोटेंटाइजेशन बहुत इजी है। पोटेंटाइजेशन में कुछ नहीं है। पोटेंटाइजेशन पहले आप साइंटिफिक अप्रोच अगर आपका आता है तो आप साइंटिफिक अप्रोच उसमें लिख सकते हो विद द डेफिनेशन। then after that you can write down the trituration and the succussion. These are the two parts of the potentization. अब ये potentization आपको कितने मार्क्स के लिए आता है, that is again a important thing. If it is of 5 marks then you have to cut down your theory. अगर ये 10 मार्क के लिए आता है देन यू कैन इंक्रीज इट बाय योर वे कि लिखने तो सब पॉइंट्स है अपने को वहां पे। सो आफ्टर द डेफिनेशन एंड द साइंटिफिक अप्रोच यू राइट डाउन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोटेंटाइजेशन जो हम लोग क्यों करते हैं। सो हियर फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंटाइजेशन एंड इफ यू आर हैविंग द नॉलेज या आपको अच्छे से आता है तो यू कैन राइट डाउन द साइंटिफिक अप्रोच। अगर नहीं आता है तो यू कैन skip this scientific approach but write down the objects of the potentization. After that you write down the effects of potentization. अब ये object और जो effects है you can combine it. Okay, then third thing is the फैक्टर्स ऑफ व्हीकल्स आप इसमें कौन से यूज करते हो वो आप इसमें लिख सकते हो। सो यू कैन राइट डाउन इट बाय द हेडिंग। आफ्टर दैट यू राइट डाउन कि टाइप्स ऑफ पोटेंटाइजेशन की सकशन एंड ट्राइचुरेशन। देन इसके स्केल्स हम कौन से इसमें हम पोटेंटाइजेशन करते हैं, जैसे सेंटीसिमल एंड डेसिमल में हम ट्राइचुरेशन करते हैं एंड फॉर द सकशन हम लोग करते हैं 50 मिलीसिमल स्केल, सेंटीसिमल एंड डेसिमल। तो उसका क्या क्या तैयार होगा वो आप इसमें लिख सकते हो। इफ इट इज ऑफ 5 मार्क्स देन यू राइट डाउन ओनली वन, आइदर ट्राइचुरेशन और सकशन। सकशन में तो कुछ है ही नहीं वैसे भी लिखने के लिए, बहुत ही कम है उसमें। सो बेटर यू राइट डाउन अबाउट द ट्राइचुरेशन। अब अगर ये 5 मार्क के लिए आता है तो ये ट्राइचुरेशन का जो टेबल हमको दिया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जो टेबल है आपकी बुक में, यू राइट डाउन दैट टेबल ओनली। बस हो गया काम आपका। टोटल टाइम 60 मिनट लगता है। 60 मिनट इज डिवाइडेड इनटू द 20 और उसको कैसे डिवाइड किया है तो राइट डाउन दैट टेबल। अब इतना सब आप लिखोगे दैट इज सफिशिएंट फॉर द 5 मार्क्स। लेकिन अगर ये 10 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है सो यू राइट डाउन ऑल द थिंग्स कि कौन से सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं ट्राइचुरेशन में, व्हीकल्स कौन से यूज करते हैं, कौन से ओल्ड मेथड ऑफ मदर टिंचर में यूज करते हैं, देन प्रोसीजर कैसी है उसकी एंड देन राइट डाउन दैट टेबल। ओके, 5 मार्क्स के लिए सिर्फ टेबल बना के स्टेजेस देके छोड़ सकते हो बाय राइटिंग द टेबल एंड बाय द गिवन द मटेरियल हम कौन सा यूज करते हैं, बस उसके बाद हम नहीं लिख सकते। इफ इट इज ऑफ 10 मार्क्स तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि व्हीकल्स कौन से हैं, सबस्टेंस कौन से क्लासेस में होते हैं, राइट डाउन द टेबल। अब इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है देन यू कैन राइट डाउन द कन्वर्शन अंडर सेंटीसिमल स्केल। तो एट द कन्वर्शन अंडर डेसिमल स्केल। सो हम सेंटीसिमल स्केल में 3c to 4c कन्वर्ट करते हैं एंड देन 6x to 8x। तो आप उसमें इतना लिख सकते हो इन द पोटेंटाइजेशन। अब इसका ही सेम एक दूसरा है दैट इज द पोटेंसी।
सो पोटेंसी पे अगर आपको क्वेश्चन आता है, सो यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द फ्लक्शन पोटेंसी, यू हैव टू राइट डाउन अबाउट द हाई फ्लक्शन पोटेंसी, स्ट्रेट पोटेंसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब पोटेंटाइजेशन का भी अगर क्वेश्चन आता है, सो ट्राइचुरेशन को अगर आप कट शॉर्ट करता है और टेबल बना के, देन व्हीकल्स कौन सी यूज करते हैं, ये सब आपने अगर टेबल बना दिया इन द 10 मार्क क्वेश्चन, सो मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर मेरिट्स वहाँ पे लिखते हो ट्राइचुरेशन के एंड सम demerits of it, so that will be a good impression on the examiner. So this is the uh, total या इसमें आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, मॉडर्न वे ऑफ ट्राइचुरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो मॉडर्न मेथड ऑफ ट्राइचुरेशन, आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो ये 10 मार्क के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट। प्रिकॉशंस अगर आप लिखना चाहते हो, टाइम है, सो यू कैन राइट डाउन द प्रिकॉशंस। बट पोटेंटाइजेशन अब प्रॉब्लम आता है, हाँ इसमें आप सकर्षण का एक 2-3 लाइन आप लिख सकते हो, सकर्षण क्योंकि बहुत छोटा है, तो आप इसमें आप ऐड कर सकते हो। सो ये 10 मार्क के लिए these points are sufficient, more than sufficient, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इसमें ये मुझे किसी ने पूछा तो नहीं है, लेकिन आई एम गिविंग दिस फ्रॉम माय साइड कि अगर पोटेंसी पे अगर आपको क्वेश्चन आता है, सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पोटेंसी फर्स्ट, देन द टाइप्स ऑफ पोटेंसी आप इसमें लिखना है। सो टाइप्स ऑफ पोटेंसी में आप इसमें लिखोगे that is the fluxion potency, then the high fluxion potency, उसके बाद straight potency। बस आप इसमें इतना ही पॉइंट्स अपने को लिखने हैं, फ्लक्शन, सॉरी, हाई फ्लक्शन एंड स्ट्रेट पोटेंसी। सो पोटेंसी में आप ये सब लिख सकते हो फॉर द 5 मार्क्स। इसके ऊपर ये नहीं आता है, 10 मार्क के लिए पोटेंसी नहीं आती है। अगर आता भी है, सो यू राइट डाउन दे आर द स्केल्स ऑफ पोटेंटाइजेशन, सेंटीसिमल, डेसिमल एंड ऑल दिस थिंग। सो आई थिंक आई हैव क्लियर the chromatography, ethyl alcohol, potentization and trituration with the semi solid vehicle and potency from my side. सो एक स्टूडेंट ने ये मुझे भेजा था, सो आई हैव कवर्ड आई थिंक ऑल द queries of that particular student. Now I am taking the queries of the another student. You need just minute so that I will open their account. 8 minutes सिर्फ। हाँ, ma'am, if the question come from the quality control, so this is the regarding the quality control of 5 marks, then which point we have to conclude in that? Second is the in process quality control. So these two questions are related to the quality control. So just we will take first this quality control, then second question is of the percolation, and the third one is regarding the drug proving. So first we will take this quality control. So in the quality control, I think I have given you द पीपीटीज, यानी जब मैंने पढ़ाया था तब आपके पास वो पीपीटीज होंगे क्वालिटी कंट्रोल के। सो इन दैट क्वालिटी कंट्रोल फर्स्ट डेफिनेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप या फिर इंट्रोडक्शन या फिर एम जो आप यहाँ पे लिखोगे, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका आएगा डेफिनेशन, 5 मार्क्स के लिए आई एम टेलिंग। हाँ, पहले डेफिनेशन यहाँ पे आएगा एंड देन द एम and then the objects of the quality control. So aim is to control the total procedure providing the standard medicines to the patient, ये हमको पता है, and how we are doing it by doing by keeping the certain objectives. So objective कौन से हैं हमसे, हमारे की quality specifications जो है वो वहाँ पे ठीक रहने चाहिए, all the ingredients should be correct, update the purity, it should be specified by the certain pharmacopoeia, it should be packed, labeled and properly stored. So these are the objectives.
देन आप इसमें 5 मार्क के लिए आपको अगर क्वालिटी कंट्रोल पूछते हैं, सो हियर यू कैन राइट डाउन द पैरामीटर्स फॉर द क्वालिटी कंट्रोल. सो पैरामीटर्स में आपके आएंगे मटेरियल, पर्सनली जो यहाँ पे यूज करते हैं या पीपल, इक्विपमेंट्स, एनवायरनमेंट एंड द मेथड्स, ये आपको वहाँ पे लिखना है. एंड देन द उसके बाद आपका आएगा कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स या फिर सैम्पलिंग कैसे करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहाँ है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं. उसके बाद द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ, यू आर डूइंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल एंड द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द व्हीकल. सो ये सब पॉइंट 5 मार्क के लिए. अब शुरुआत अगर आपकी डेफिनेशन, एन, ऑब्जेक्टिव ये परफेक्ट अगर होती है, सो दैट विल बी अ गुड. सो पैरामीटर्स के बाद आप इसमें सेंटर्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लिख सकते हो. उसके बाद आप क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग सब्सटेंस कैसे करते हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड बेसिस कैसे करते हैं वो. और इसमें सेकंड आएगा इन प्रोसेस. इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल लिखना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि इन प्रोसेस में लास्ट टाइम 5 मार्क का क्वेश्चन आया था. तो आप जब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल लिखोगे, उसके बाद आप स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन लिखोगे, तो स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन में ही आपका इन प्रोसेस आएगा. सो राइट डाउन द इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल. इतने 5 मार्क के लिए पॉइंट सफिशिएंट है. So definition, aim, objective, parameters, centers for this quality control of raw drug substance, raw material, quality control of the vehicle and basis, and in process quality control. ये आपका 5 मार्क के लिए सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल अगर आता है, देन इट इज अ सफिशिएंट. अब सिर्फ अगर इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में अगर आता है, देन यू हैव टू, वो तो 5 मार्क के लिए आता है. सो इन प्रोसेस में आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है विच इज गिवन इन द बुक. सो इन दिस वे क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन आपका 5 मार्क के लिए हो जाए. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेरी दैट इज आस्क्ड अबाउट द परकोलेशन. अब परकोलेशन जनरली 10 मार्क के लिए पूछते हैं. तो परकोलेशन का मैंने बहुत बार लिया है. परकोलेशन की शुरुआत ही आपको वैसे करनी है कि इट इज़ अ न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंचर. अब इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको परकोलेटर के बारे में लिखना है. उसके बाद इसकी प्रोसीजर कैसी होती है, व्हाट द प्रीवियस, इसके इसमें हम क्या करते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस. सो ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे परकोलेशन में. सो ओके, परकोलेशन में हम पहले लिखेंगे कि ये कौन से मेथड में ये आता है. सो योर फर्स्ट लाइन शुड बी रिगार्डिंग द मेथड. उसके बाद आप इसमें लिखोगे डेफिनेशन. देन हम इसमें लिखेंगे दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर. उसके बाद आपको लिखना है परकोलेटर के बारे में. अब इसकी डायग्राम भी इसमें आ जाएगी, इसके टाइप्स आ जाएंगे, इसके 2 हेड्स कौन से है वो आएंगे. एंड देन राइट डाउन द प्रोसीजर. ठीक है. प्रोसीजर में आपको लेयर्स देने हैं, कौन से लेयर देने हैं, कितने कितने थिन वो रहते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर. उसके बाद वो पूरा लिखना है आपको कि हम लेयर अरेंज कर से. डेफिनेशन में आपने वो टाइप ऑफ ड्रग सब्सटेंस लिया ही है, प्रिंसिपल में भी वो हो जाएगा आपका कि हमने ये एग्जांपल लेके हम कर सकते हैं. इसमें रिक्वायरमेंट भी आएगा, पर्कुलेटर का एक्सप्लेनेशन. देन प्रोसीजर हमने पाउडर स्प्रेड कर दी. देन हम मेंस्ट्रुम डालते हैं उसमें, इट विल पर्कुलेट थ्रू द डिफरेंट लेयर्स. और फिर हमको 48 आवर्स के बाद यू विल टैप, जब आप ओपन करोगे सो वो 15 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट धीरे धीरे आपको वो पूरा मदर टिंचर मिल जाएगा. सो लास्ट ड्रॉप तक वो प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है.
अगर आपको ऐसे लगता है कि सम ड्रग मटेरियल इज स्टिल देयर, अल्कोलाइड फिर भी उसमें है, तो आप इसमें फिर से अल्कोहल ये स्ट्रॉन्ग अल्कोहल डाल के यू कैन कीप इट फॉर द 6 आवर्स, अगेन ओपन इट, वो पहले का मदर टिंचर और ये मदर टिंचर आप मिक्स कर देता है, एंड देन इफ द वॉल्यूम इज मच मोर एंड वॉल्यूम इज लेस, वो हमने डिस्कस किया है पहले, तो दोनों मदर टिंचर आप मेजर करके यू जस्ट डिसाइड, then you can write down here potentization. So potentization में आप रेशो लिख सकते हो डेसिमल स्केल। अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि the drug power or the drug strength in the new method, it is the uniform 1/10, तो 1x पोटेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है, सो फॉर 2x पोटेंसी आपको क्या करना है, और उसमें लाइन लिख देना, द फर्दर पोटेंसी विल प्रिपेयर्ड बाय द सेम। सिमिलरली इन द सेंटीसिमल स्केल आपको क्या करना है कि 1x है आपके पास, सो 1/10 है, तो आपको कैसे लेना पड़ेगा, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। If you want to prepare the 1c potency from 1x potency, how you will prepare, what will be your ratio for the preparation, or what will you take in the centesimal scale proportion आप कैसे लोगे, so that is the sufficient for the percolation for the 10 marks. सो मेथड यानी न्यू मेथड में आता है, इसमें डेफिनेशन यानी आप कौन सा मटेरियल इसमें यूज करोगे उसको अंडरलाइन करना है डेफिनेशन में, प्रिंसिपल में रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको क्या क्या लगता है इसमें, इंग्रेडिएंट्स आप कैसे लेते हो, एंड देन राइट अबाउट द शॉर्ट अबाउट परकोलेटर, इसमें लेयर्स हमको अरेंज कैसे करते हैं, देन प्रोसीजर, प्रोसीजर में आपको विद द रेफरेंस ऑफ द लेयर आपने जो यहाँ पे लिखी है उसका रेफरेंस देके राइट डाउन द प्रोसीजर, देन ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन कि अल्कोहल कितना डालना है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कितना टाइम तक उसको रखना है, देन कैसे ओपन करके मदर टिंचर करना है, अगेन 6 आवर का प्रोसीजर लिखना है, एंड देन राइट डाउन द पोटेंटाइजेशन। सो दिस इज द सफिशिएंट फॉर द 10 मार्क्स। अब इसमें डायग्राम आपको जरूरी है, लेयर्स ऑफ पोटेंटाइजेशन देना जरूरी है, क्लियर। और अगर आपको इसके साथ क्वेश्चन और आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू मेथड या परकोलेशन एंड मैसरेशन, सो इट इज इजी फॉर यू कि मैसरेशन लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, मैसरेशन में गमी म्यूसिलेशंस यूज करते हैं, इसमें सॉफ्ट एंड नॉन गमी है, देन ड्राई ड्रग सब्सटेंस कैन बी यूज इन द परकोलेशन, लेकिन मैसरेशन में फ्रेश ड्रग सब्सटेंस यूज करते हैं, देन द सबसे इम्पोर्टेंट कि डिकेंटेशन में मैसरेशन, ये सॉरी परकोलेशन में डिकेंटेशन नहीं करते हैं, उसमें डिकेंटेशन करते हैं, एंड यूनिफॉर्म उसकी एक सिमिलैरिटी लिखना कि इसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, सो इन दिस वे इफ दे आस्क देन यू कैन राइट द difference also. So this is I think sufficient for the 10 mark question for the percolation. The next question जो एक और पूछा है, एक मिनट, हाँ मुझे देखना पड़ेगा, एक ही मिनट, परकोलेशन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, एक सेकंड से, और एक क्या था, ड्रग प्रूविंग। तो ड्रग प्रूविंग का मैंने बहुत बहुत पहले भी बोला है आपको, लेकिन वो बहुत कम लोग ड्रॉ करते हैं। वो जो टेबल है आपके पास लास्ट पेज ऑफ योर, वो जो है, लास्ट पेज नहीं बोल सकते, बीच में उन्होंने एक टेबल दिया है आपके बुक में, सो दैट टेबल अगर आप लिखोगे तो उसके हिसाब से आपको लिखना भी बहुत इजी होगा फॉर दैट ड्रग प्रूविंग। सो ड्रग प्रूविंग की शुरुआत अगर वो टेबल बना के करते हो तो पॉइंट्स भी सब उसमें कवर हो जाएंगे, आपको मार्क्स भी वहाँ पे अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि ड्रग प्रूविंग एक करके ही रखो आप लोग, क्योंकि वो हमेशा हमेशा 20 मार्क के लिए ही पूछते हैं, एंड ड्रग प्रूविंग अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। सो आप यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखो पहले, देन हम जो ट्रायंगल बनाते हैं, हमेशा मेरे इसमें भी है वो ट्रायंगल आपके पीपीटी में, AN GLE, सो दो ट्रायंगल यानी प्री रिक्विजिट थिंग्स आपको वहाँ पे लिखने हैं, मैंने ट्रायंगल लिखा सो दैट यू विल गेट कि मैम को क्या बोलना है, देन ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू राइट डाउन। अब इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो जो टेबल आपको दिया है वो टेबल के हिसाब से ही आप अपना आंसर बनाओ, वो फ्लो चार्ट जो दिया है वैसे ही बनाओ। अब उसमें सिलेक्शन ऑफ प्रूवर आएगा, ह्यूमन प्रूविंग क्यों करते हैं, हेल्दी क्यों लेते हैं, सिक क्यों नहीं लेते हैं, एनिमल्स क्यों नहीं लेते हैं, हु इज द बेस्ट प्रूवर,
वाई ही इज द बेस्ट प्रूवर, डिफरेंट जेंडर्स पे करते हैं, मेनी पॉपुलेशन या मेनी इंडिविजुअल पे हम लोग करते हैं। देन कौन से ड्रग हम लोग लेते हैं, जैसा ड्रग है वैसा ही हम लोग डोज और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये सब हो गया प्री रिक्विजिट। अब ड्यूरिंग द प्रूविंग हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं हम उसके, हाउ द कंप्लीट सिम्टम्स वी आर गेटिंग। अगर वो प्रूवर लिटरेट है तो कोई बात नहीं है, इलिटरेट है तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें उसमें आएंगे। देन प्रिकॉशंस हमको कौन से लेने हैं रिगार्डिंग द मेडिसिन एंड रिगार्डिंग द प्रूवर। सो प्रूवर को हम मेंटल रेस्ट्रिक्शन देते हैं, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस देते हैं, मेडिसिनल रेस्ट्रिक्शंस देते हैं। एंड रिगार्डिंग द मेडिसिन, उसको हम लोग बोलते हैं हम उसको जेन्युइन मेडिसिन ही हमको उसको देनी है। देन द मेडिसिन का अगर नार्कोटिक है तो सेकेंडरी इफेक्ट दिखेंगे, अदरवाइज हम विल सी द प्राइमरी इफेक्ट ऑल्सो। डोजेज आपको कम देने हैं, पोटेंसी अगर आप देते हो तो लोअर पोटेंसी शुड बी यूज, लार्जर डोजेस ऑफ मेडिसिन हमको नहीं देने हैं। उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन द डीमेरिट्स एंड द मेरिट्स ऑफ द ड्रग प्रूविंग। अब इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप उसमें वो जो हम कमिटी वगैरह हमने देखे थे ना, वो आप उसमें लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड बुक में अलग है, न्यू बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ। सो आई थॉट, बट लेकिन मैं फिर से बोलती हूँ, फ्लो चार्ट अगर आप अच्छे से लिखते हो so all the points are there for the drug proving। और न्यू बुक में उन्होंने टीम दी है कि डायरेक्टर एक होता है, कोऑर्डिनेटर एक होता है और प्रूवर एक होता है। तो वो हिसाब से भी अगर आप लिखते हो देन देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल कि डायरेक्टर का फंक्शन क्या है, वो भी मैंने दिया है मेरे लास्ट पीपीटी में। डायरेक्टर का फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटर की फंक्शन क्या है और प्रूवर का क्या है। सो वो सब भी आप इन दैट फैशन ऑल्सो यू कैन राइट डाउन, या फिर आप फ्लो चार्ट या टेबल बना के उसमें भी वो सब चीजें आती है। सो ड्रग प्रूविंग में आएंगे आपका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, प्री रिक्विजिट एंड द सर्टन रूल्स आएंगे। अब सिलेक्शन ऑफ प्रूवर एनिमल नहीं, ह्यूमन बींग्स में, सिक पर्सन नहीं, हेल्दी ही में ही हम करते हैं। देन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दैट प्रूवर, different genders, different people and a different constitution, ये सब पॉइंट्स इसमें आएगा। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इंडिजिनियस ले सकते हैं, एक्सोटिक ले सकते हैं, ड्राई ले सकते हैं। उसके डोजेस हमको कैसे देने हैं वो आपको लिखने हैं, लेकिन इसमें आपको डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ लार्जर डोज एंड मेरिट्स ऑफ स्मॉलर डोज नहीं भूलना। देन द सिम्टम्स रिकॉर्ड कैसे करना है, लिटरेट इलिटरेट प्रूवर है तो क्या करना है, व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक एंड व्हाट डाइटरी एंड रिस्ट्रिक्शंस हमको क्या क्या देने हैं, तो सब इसमें आएगा ड्रग प्रूविंग। तो मुझे इतने ही क्वेरीज आए थे फ्रॉम द 72 स्टूडेंट, मुझे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ने इतने ही क्वेरीज पूछे, यानी आपको सब आता है, नहीं आता है, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन फिर भी अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस देने हैं तो यू आर ऑल वेलकम। So I think I have covered 6 to 7 queries, बस मेरे पास इतने ही आए हैं। I'm checking all the accounts, लेकिन मुझे नहीं मिले हैं कुछ। बस मुझे नम्रता और भाग्यश्री ने ही ये क्वेश्चंस पूछे थे। नम्रता नहीं, सॉरी, ये एक सेकंड, और कुछ क्वेश्चंस है क्या, लेट मी चेक। निकिता, नॉट नम्रता, निकिता भी मुझे पूछे थे, निकिता गजारे। सो दो ही इसके मुझे ये आए थे। ओके, ठीक है। So if you have any doubt, you can ask me anytime.